Hi everyone, because this is my first video, so I will introduce myself. I'm CA Ashika Bansal, Jan 26 qualified with the AIR 50. Done my graduation from SRCC. Articleship experience is in transfer pricing from RSM India. Uh, the reason I'm doing this is because when I started my CA final journey, I was very lost, like whether to do self study, coaching, किससे कोचिंग लेनी है, कितना टाइम लगेगा, how I have to do all of these stuff. So I don't want you to do and suffer all of these. So you can follow me and you can let me know in the comments what should I cover, what you want me to cover next thing, whether you want me to invite other AIRs or want to cover other topic, anything you want. So in this video I'm gonna cover how I scored 74 marks in FR with self-study. So I also tell ki how much time did I take. So like for Jan exams I took leaves from around mid of the July, and prior to that I have only covered FR, that too except business combination, consolidation, complete module 5, financial instruments, which is like a major portion. But still I have scored good marks, so you can also do that. Don't just give up. I'm not motivating you to not to study during your articleship experience, sorry, articleship period, but because of certain things you can't, or you just sometimes want, so that's okay, that's complete fine. Okay, so I started with module 2, which covers small Indias like 2, 16, 38, 40. And for that I preferred Praveen Jandal sir revision videos, which is available free on YouTube, handwritten notes, and the question bank, which is again available free on his website. I used to see his revision videos, solve his question bank, also the MCQ part side by side, because at the end you will not get much time, and even MCQ part will still require practice. That's a mistake that I did in DT that I'll cover next time. Okay, and then I read ICI module, complete module. Might possible that in the first time I wasn't able to understand certain things, but in like twice or thrice I was able to. I covered ICI illustrations, practice questions. There are also practice questions at the end of every module, that also I covered simultaneously. And I also say one thing, in FR practice is the key. So even if you are taking coaching, you are doing self study, practice guys. Practice is the only key to do that. Seriously. FR ka key to score good marks is practice. And you will see what mistake I did is ki I focused a lot on the provisions. Definitely you should do that in DES mein, you should definitely do that. I definitely suggest you do that, but also practice. Provision समझ में आने चाहिए, what is written in DES, but practice is a key. Then for module 3, by that time I found that there is a AS Foundation which has uploaded lectures all free, like all the lectures freely are available on YouTube. I covered module 3 from his free YouTube lectures. For module 3 I'll suggest, yeah, that's a good video. Again, same strategy, see videos. Question bank to I preferred, I used of Praveen Jandal sir only, and ICI module ka. Then coming to module 4, which covers financial instruments, I think share based payment, biological asset, government grant, I believe that is in the module 4. So for share based payment I use Ajay Agarwal sir revision videos. With see it 2 to 3 times, but trust me, that is the best video for share based payment. Actually helped me a lot. Then for biological asset, you can cover it from AS Foundation, or even that is very easy, that you can cover from AS Foundation, and even government grant also. Even government grant you can also cover from Praveen Jandal sir revision videos also, because that is like more or less on your biological asset is new, I agree, but that is very easy, so you can easily cover that. And government grant is less or more similar like AS only, so that won't be a very much issue. For financial instruments, again, that's a very big chapter, but that's very easy, trust me. You just need to practice it. So for that you should refer, at least I referred revision videos of Praveen Jagati sir and also the Ajay Agarwal sir. I saw both of those videos, because एक बारी में वो समझ नहीं आएगा.
ट्रस्ट मी वो नहीं आता एक बारी में समझ, तो आप 2 बार देखो, ठीक है, दोनों बार प्रैक्टिस करो बहुत बार, मतलब और अजय अग्रवाल सर की जो कॉन्सेप्ट बुक है फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी है. दे हैव कवर्ड लाइक दे हैव डिवाइडेड द चैप्टर्स इनटू कि फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फिर उसमें कौन सा एएमसी मॉडल लगाना है. मतलब आई सीरियसली सजेस्ट कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो अजय अग्रवाल सर की concept book is very good. Similar for business combination and consolidation. For that also I referred revision videos of Ajay Agarwal sir and also of the Pratik Jagrati sir. For rest of the module 1 and the module 5 again I referred revision videos of Praveen Jagrati sir. For these I haven't referred Praveen Jindal sir के क्वेश्चन बैंक बिकॉज वो बहुत बड़ा हो गया था एंड इतना टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैंने ऑर्डर कर ली थी अजय अग्रवाल सर की क्वेश्चन बुक एंड कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक. तो वो ये सारी चीज़ें आई कवर्ड फ्रॉम हिज क्वेश्चन बैंक. Concept book I definitely referred, but there were certain points which he hasn't covered, specifically theory के, and theory आती है. मेरा पेपर तो was almost theory only. तो I have like I have read single line by line from ICI module. तो ICI module तो भगवान है, that is like for you God. तो ICI module तो पढ़ना ही पढ़ना है, but like at the end of the day like एग्ज़ाम से पहले क्या होता है कि यू जस्ट हैव 1 और 1.5 डेज़. FR में ऐसा नहीं होता बिकॉज आप पहले से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हो. तो उसके लिए मैंने उनके क्वेश्चन बैंक रिवाइज उस टाइम पे मैंने कॉन्सेप्ट बुक रेफ़र करी थी फॉर लाइक गोइंग थ्रू दी कॉन्सेप्ट्स. बट लास्ट में आते आते आई जस्ट referred one thing which was ICI module के questions, like I have solved it so many times, trust me. and अजय अग्रवाल सर के बाकी के क्वेश्चंस जो ICI मॉड्यूल में कवर नहीं है, जो RTP MTP होते हैं, बिकॉज उनके क्वेश्चंस लेस और मोर सिमिलर लाइन पे होते हैं ICI के, उन्होंने चेंज नहीं करा हुआ होता अपने सोल्यूशंस को, तो इसीलिए आई रेफर दोज. इवन प्रवीण जिंदल सर ने भी करा हुआ होता है, तो उसमें भी मैंने ICI मॉड्यूल का ही आंसर देखा था, बिकॉज आपको लिखना वही है, आपको मार्क्स उसी से मिलेगा, एंड दैट इज़ हार्श ट्रुथ. और ऐसा नहीं है देयर इज़ नो लॉजिक, वो लॉजिक है. सी एवरीबडी इंटरप्रेट द थिंग्स डिफरेंटली, तो मैं आई हैव ऑलवेज फाइंड कि इवन इन ICI सोल्यूशन देयर इज़ अ लॉजिक. ठीक है, देयर लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं दे हैव लाइक रॉन्गली इंटरप्रेटेड. नो, आई थिंक इंटरप्रिटेशन इज़ सब्जेक्टिव, तो वो उस कारण होता है, बट हाँ दैट इज़ अ गुड थिंग. अब जब यू हैव कवर्ड इट वंस और ट्वाइस, ठीक है, वीडियोस से देख के साथ में प्रैक्टिस करके, अब व्हाट यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिस. अब डोंट हैव टू सी रिवीजन वीडियोस अगेन एंड अगेन. ऐसा होगा कि यू नो तीसरी बार खुद करने बैठोगे ना तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार तो साथ में करा था. और अब चीज़ें क्योंकि बहुत सारे लाइक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, मिक्सअप होता है, बट नहीं, अब रिवीजन वीडियोस को दोबारा देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा. अब यू शुड प्रैक्टिस योर सेल्फ ओनली. सो ऐसा हुआ था कि फॉर बिग बिग इंडेस, तो बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो वो तो फिर मैंने कवर किया था उनके अजय अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक से ही. But I'll suggest again one thing, even if you are referring to his concept book, but still at least read once every index from ICI module, because there is like theory which he hasn't covered in his concept book, and even a lot of teachers don't do that. But like if you'll see Jan 26 exams, it was more or less of theoretical exam, so you cannot afford to leave anything. Yeah, that's my even that I just forgot, that's my first advice. Don't leave anything, don't go for ABC analysis, that don't work, you know, because a lot of time you never can predict ICI what they are gonna do. So cover everything, even module 1 also we used to leave it कि ठीक है छोटा सा है, but मेरे एग्जाम्स में that was a very good portion. तो cover even theoretical chapters also. माइट बी डोंट हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, जैसे आई सॉ प्रवीण जगाती सर की रिवीजन वीडियोज़ एंड आई रेड इट वंस और ट्वाइस एंड देन आई जस्ट प्रैक्टिस इट एंड दैट्स इट. सो यू डोंट हैव टू डिवोट मच टाइम एज यू नीड टू डू टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन. आई अग्री, बट डोंट लीव दैट. एंड नाउ कमिंग टू लाइक ड्यूरिंग माई 5 months में, सो स्टार्टिंग में तो इट टुक मी अराउंड लाइक 2 to 3 months में तो ऐसा हुआ था कि आई हैव टू कम्प्लीट एवरी सिलेबस. ठीक है, लास्ट के 2 months में आई यूज़ टू प्रैक्टिस. मतलब ऐसा होता था कि इवन अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैं प्रैक्टिस करने बैठ जाती थी. एंड FR तो ऑलवेज हैज़ बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट.
और मेरा हमेशा से था कि FR में तो यार अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। एंड तो ऐसा हुआ था कि जैसे जब फर्स्ट टाइम खुद प्रैक्टिस करने बैठी थी तो ऐसा हुआ था कि वो चीज़ें पहली बारी में नहीं समझ में आ रही है। ऐसा हुआ है कि पहली बारी में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो सेकंड टाइम में नहीं, सेकंड टाइम में वो नहीं हो रहा, बिकॉज FR बहुत बड़ी है, कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाता है, बट ठीक है, हर किसी के साथ होता है। बाय द टाइम यू कम टू थर्ड फोर्थ प्रैक्टिस वो चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी। अब कितना चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रायोरिटाइज करके करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन है, तो मैं ऐसे करती थी कि अगर मैं सुबह पढ़ लाइक अगर इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तो स्टार्टिंग में तो मॉर्निंग में तो यू शुड ऑलवेज रीड ऑडिट ओनली। उसके बाद मैंने क्या करा था कि मैंने आधा घंटे का एक स्लॉट निकाला था कि आधे घंटे में मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रोज़ प्रैक्टिस करके क्वेश्चन निकालना, ताकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि मैं टाइमली उसे सॉल्व कर सकूँ। सिमिलरली आधा घंटा बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन के लिए मैं निकालती थी कि ये तो कवर करना ही है, अपार्ट फ्रॉम जो कि है ही शेड्यूल। आई विल कवर वन वीडियो ऑल्सो कि जिसमें मैंने पूरे 5-6 महीने में कैसे पढ़ाई करी थी, बट FR के लिए भी मैं कवर कर रही हूँ ये चीज़ें। उसके अलावा जैसे जैसे आप एंड तक आओगे तो आपको मतलब मेरा ऐसा हुआ था कि जो छोटे छोटे इंडेक्स मैं बता रही हूँ, मेरी उनकी पे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे पता था कि इसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना। मेरा मेन फोकस अब रिवाइज़ करने का वो है जो कि मेजर पोर्शन है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, आना ही आना है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, यूजुअली आता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कंसोलिडेशन है, और वो बहुत लेंदी भी होता है और उसमें बहुत टाइप के वेराइटीज़ भी होती हैं। तो वो था, लेकिन उस टाइम तक आते आते जो छोटे छोटे इंडेक्स थे जैसे 2, 16, 38, वो मैं आपको ऑलरेडी बताया क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से पहले ही कवर कर लिए थे, तो एंड में मुझे उनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जहाँ मुझे टाइम देने की ज़रूरत पड़ी थी वो वही थे, FI वगैरह। तो आई विल से सजेस्ट दिस टू यू ऑल्सो कि जब आप छोटे इंडेक्स को कवर कर रहे हो तभी आप उसको इतने अच्छे से कवर कर लो कि जो आपके पास एंड का टाइम हो उसमें बस वो आप अगर कम भी टाइम दे पाओ तो वो प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। और MCQs तो साथ में कवर करने ही हैं, तो वो भी आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ कमिंग टू लास्ट थिंग विच इज़ मॉक टेस्ट पेपर। आई हैवंट रिटन एनी मॉक टेस्ट पेपर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। नाउ डू यू शुड यू राइट इट और नॉट, that depends upon कि what is your weakness. जैसे for me speed was never the weakness because I told you कि मैं हाफ एन आवर का टाइम लगाती थी for FI, तो मेरा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट आई सॉल्व 2 questions in half an hour. तो speed was never an issue. I saw definitely you should see question papers, at least question papers तो पास्ट ईयर का देख लेना चाहिए कि क्या पैटर्न फॉलो होता है। इवन वो पहले पढ़ने से मतलब जब आपका ऑलमोस्ट 1 या 2 बार कवर हो जाए तो वो एक बार देख लेना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस कवर होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू प्लान आउट द थिंग्स अकॉर्डिंगली। बट लिखना चाहिए मॉक टेस्ट और नॉट, वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर वीकनेस। अगर इफ़ योर वीकनेस इज स्पीड तो आई विल तो सजेस्ट कि वाइल प्रैक्टिसिंग ओनली प्लेस द टाइमर एंड देन सी की हाउ much time you are taking to solve it. But if you're is like you do silly mistakes or you think you just need somebody to at least suggest you कि हाँ कि मेरा इम्प्रूव हो सकते हैं मार्क्स को या कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट एंड यू शुड ऑल्सो। बट अगर ऐसा लेस ऑफ टाइम है एंड यू आर नॉट एबल टू राइट मॉक टेस्ट और यू आर ऑफ द व्यू कि मॉक टेस्ट नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं लिखे हैं एक भी, हाँ, बट मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे कैसे आते हैं, सॉल्व करा था विद नो टाइमर कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये न्यू क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना चाहिए, वो आई डिड इट। मैंने बहुत लोगों की वीडियोस भी देखी हैं जिसमें AIRs भी हैं जिन्होंने लिखे हैं, उन्हें हेल्प भी हुई है। इवन एक AIR 1 की मैंने देखी थी, ही सेड कि उनको बिकॉज प्रॉब्लम थी स्पीड में कवर करने के लिए, तो उन्होंने FR के 4-5 लिखे थे ताकि स्पीड वॉन्ट बी द प्रॉब्लम। तो एनालाइज कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू इफ़ यू नो कि स्पीड इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू तो स्टार्टिंग में अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर प्रॉब्लम है कि सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, जल्दी जल्दी लिखने में सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, तो फिर मॉक टेस्ट लिखना चाहिए, फिर तो आई सजेस्ट, क्योंकि फिर वो थोड़ा माइंड मेंटली प्रिपेयर हो जाता है वैसे। दैट इज़ फॉर टुडे। कुछ और कवर करना है डू लेट मी नो। वैसे आई विल ट्राई टू कवर IBS नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स फॉर IBS. सो माई नेक्स्ट वीडियो टारगेट वुड बी IBS. कुछ और कवर करना है, सो डू लेट मी नो.